In dynamic equilibrium model, we have seen that because of polymerization of intragenol fibers and depolymerization of chromosomal fibers, chromosome move towards spin. But the question is from where initial mechanical force come. Initial mechanical force is required. Without this, polymerization and depolymerization cannot work. So experiment has proven that between continuous fiber there is a dynein protein. Dynein protein होती है. Protein. They sliding past each other. They sliding past each other, which generates mechanical force. Because of that initial mechanical force, polymerization and depolymerization actually work. समझा ना? जब दो कंटिन्यूअस फाइबर्स के बीच में डाइनिन प्रोटीन होती है तो वो स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर करता है, इधर जाता है इधर आता है, जैसे मस्कुलर मूवमेंट होता है ना, एक्टिन मायोसिन, ऐसे होती है. उससे एक फोर्स जनरेट होती है. दैट फोर्स एक्चुअली हेल्प्स पॉलीमराइजेशन डिपॉलीमराइजेशन. ठीक है, ये डायग्राम नहीं, और जहां पे होता है जैसे यहाँ पे डिपॉलीमराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो रही है, वो तो हो ही रहा है. तो दिस मॉडल डजंट से पॉलीमराइजेशन डिपॉलीमराइजेशन आर नॉट ऑकरिंग, वो तो होता ही है, लेकिन फॉर देम टू वर्क one initial mechanical force is required. That initial mechanical force comes from sliding past of dynein protein, which are present between two continuous fibers. नहीं तो continuous fibers की जरूरत क्या है? अब देखो, क्रोमोसोमल फाइबर्स तो खींच रहा है, इंटरजेनल फाइबर्स पुश कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूस फाइबर्स की क्या जरूरत है? तो जरूरत तो होगा ना. और जरूरत है इनिशियल मैकेनिकल फोर्स को जनरेट करने. ठीक है, नहीं तो अब अगर इन दोनों से ही काम हो जाता था तो इनकी तो जरूरत ही नहीं था. लेकिन वो देखो है proposed by McIntosh, 1969. Proposed by McIntosh, 1969, similar to beating of cilia and flagella. Similar to beating of cilia and flagella. ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, सब में है. ये नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए. The previous mechanism is difficult to explain. The generation of mechanical forces by the simple mechanism. The previous mechanism is difficult to explain. The generation of mechanical forces by the simple mechanism of polymerization and depolymerization. अच्छा, इसको यहाँ पे डाइनिन.
The present mechanism induce an element of sliding of the microtubule. Sliding of the microtubule of the spindle past each other. Induce an element of sliding of the microtubule of the spindle past each other. Added by the involvement of dynein protein on the adjoining microtubule. Dynein protein on the adjoining microtubule. इसमें एटीपी की भी जरूरत होती है. जो मैंने बताया था ना, जो इक्वेटर से पोल तक जाने के लिए 30 एटीपी की जरूरत होती है, इसी के लिए एटीपी की जरूरत होती है. द डाइनिन कैन बाइंड एटीपी टू रिलीज एनर्जी फॉर द क्रोमोसोम मूवमेंट. The dynein can bind ATP to release energy for the chromosome movement due to mechanical force. But it is added by the polymerization and depolymerization for the lengthening and shortening of the spindle fiber respectively. देखो, एक किताबी लैंग्वेज है. अगर आप अपनी लैंग्वेज से लिखोगे तो आसान भी रहेगा, कम भी हो वर्ड. ऐसे लिख सकता, फॉर पॉलीमराइजेशन एंड डिपॉलीमराइजेशन टू वर्क इनिशियल मैकेनिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड which is generated by sliding past of dynein protein which present between two adjoining continuous fibers. It is an energy consuming process in which ATP is involved. तो अपनी लैंग्वेज में लिखा तो छोटा होता है हमसे. एविडेंस क्या दिया, देखो एविडेंस. द डाइनिन प्रोटीन has been localized. The dynein protein has been localized in the spindle fiber with the help of immunoelectron microscopy. The dynein protein has been localized in the spindle fiber with the help of immunoelectron microscopy. The dynein protein दिखा तो इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू मिला है, जो है डाइनिन प्रोटीन है. द डाइनिन प्रोटीन हैज बीन लोकलाइज्ड इन द स्पिंडल फाइबर विद द हेल्प ऑफ इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. वो माइक्रोस्कोप है, उसमें दिखा डाइनिन प्रोटीन है. अब लिखना स्लाइडिंग माइक्रोफिलामेंट मॉडल. This model says that initial mechanical force is not only generated by sliding past of dynein protein, it is also generated by actin and myosin present between two adjoining continuous fibers at pole as well as at the place of kinetochore. यहाँ पे यही डायग्राम बनाना है. गंदा हो गया. मतलब डाइनिन भी स्लाइडिंग पास्ट कर रहा है, एक्टिन मायोसिन भी स्लाइडिंग पास्ट कर रहा है. दोनों से एनर्जी मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है. तो ऐसा नहीं है दिस मॉडल हैज बीन प्रूवन रॉन्ग.
ये भी सही प्रूव हुआ, एक्टिन मायोसिन भी सही प्रूव हुआ। proposed by Forer. Forer, 1974. This mechanism is based upon sliding of microfilament. Made up of actin and myosin. And associated closely with the spindle fiber at kinetochore and pole. ठीक है, देखा, the actin myosin system of the microfilament can take up the ATP to utilize its chemical energy for the sliding past each other. Generating sufficient mechanical force for the movement of chromosome evidence. Actin and myosin has been localized in the spindle by immunoelectron microscope. इम्यूनोइलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका मतलब है polymerization, depolymerization pulls and pushes the chromosome towards poles, but a mechanical force is needed, which comes from both sliding of dynein molecule as well as sliding past of actin and myosin filament। दोनों से ही होती, क्योंकि ऐसा नहीं है जो डाइनिन दिखा है एक्टिन मायोसिन देखा नहीं, तो डाइनिन भी प्रेजेंट है, एक्टिन मायोसिन भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों ही मैकेनिकल फोर्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन में एक टॉपिक अभी रह गया है, इसके रेप्लिकेशन की बात करेंगे, जो सेल साइकिल की रेगुलेशन। सेल साइकिल का पार्ट रेप्लिकेशन भी तो होता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन। जब व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन तो डीएनए रेगुलेशन भी तो आ जाता, नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस फेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। नहीं, कुछ बड़ा नहीं होगा एकदम। अभी तक जितने नोट्स तुम लोग को दिया है सभी विद इन वर्ड लिमिट से है। देखो रेप्लिकेशन में कितनी वर्ड एक्सपेक्ट करता है, डीएनए रेप्लिकेशन कितनी वर्ड में एक्सपेक्ट करता है? अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन से पहले डीएनए की स्ट्रक्चर कर लेते, क्योंकि अगर डीएनए की स्ट्रक्चर नहीं पता है तो रेप्लिकेशन क्या करेंगे? उसी का ही तो बनाना है। बताओ व्हाट इज डीएनए?
डीएनए क्या है? अच्छा, कल जो टीचर क्लास लिया था इकोलॉजी, कैसा रहा? अच्छा बताओ, डीएनए क्या क्या है? हम्म देखो, डीएनए रेप्लिकेशन से पहले डीएनए की स्ट्रक्चर जरूर करना चाहिए। और डीएनए की स्ट्रक्चर बायोकेमिस्ट्री में कराया था। स्ट्रक्चर नहीं कराया था। न्यूक्लिक एसिड तो है ही, देखना बायोकेमिस्ट्री में है। तो क्या करेंगे? तो तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं मुझे? सेल बायोलॉजी वो थोड़ी कराता, नहीं कराता। सेल बायोलॉजी में जो करंट टॉपिक है वो कराता है। उन्होंने केमिकल इसको करवाया था, मतलब सारे बॉन्ड और उसके कंपोनेंट। तो कराए तो है, दिखा ना नोट्स। है नहीं। चलो बताओ, तुम बताओ, डीएनए की स्ट्रक्चर, व्हाट इज डीएनए? हेलिक्स जुड़े हुए आपस में बेस पर, ठीक है, आगे बढ़ो। वो तो बी डीएनए की बोल रहे हैं। ऐसे भी तो जेड डीएनए भी तो हो सकता है, उसमें 10 एक्शन थोड़ी है, उसमें 34 एक्शन थोड़ी है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। जो डीएनए है, इट्स ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर in which two polynucleotide chains are helically coiling against each other in an anti-parallel manner, which is stabilized by hydrogen bond. ऐसे ऐसे है ना? ऐसे एक जनरल स्ट्रक्चर। ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड को क्या बोला जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड और चेन। तो अगर स्ट्रक्चर देखना है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड किससे बनता है वो देखना चाहिए। क्या है बताओ, व्हाट इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड और चेन? अमीनो एसिड कहां से लेकर आ गया डीएनए की स्ट्रक्चर में? डीएनए की स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड में आएगा? आई एम आस्किंग ऑफ व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। क्वेश्चन पे ध्यान दो ना, जो तुम जानते हो दैट इज गुड। मेरा जो क्वेश्चन है वो बताओ, व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, यही तो क्वेश्चन है मेरा। कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा? सिंपली इट्स ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which are linked with each other by phosphodiester bond। ये बोलेगा ना, तो उसकी कंपोनेंट्स क्यों पूछ रहा है, बोल रहा है तो क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है बताना? हम्म इट इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, है ना? हम लोग
तोड़ रहा है टू अंडरस्टैंड द डीएनए स्ट्रक्चर. व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस. है कि नहीं? तो अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है, ऐसे जाओ, बन जाएगा स्ट्रक्चर. ऐसे तो जा रहे हो ना. तो हम लोग शुरू कहां से करेंगे? यहां से शुरू करेंगे. ये लेनिंजर की नाम सुना? यही है. बायोकेमिस्ट्री की बाइबल है. हम्म? नहीं, ये तो अभी तो और बोरा होगा, और मोटा होगा. पतली, ये पतली बुक है. पतली थी, तब उसका तो कोई दूसरा वर्जन होगा. वो तो क्या होता है. एक डी वासु बोल की भी आता, अपने कॉलेज की टीचर है. कोई भी लिख देता, सब यही से कॉपी करते. पता है, रेंजर से कॉपी करते, रेंजर नहीं तो हार्पर. मुझे अगर कोई डिटेल्स, बहुत ही ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो लेनिंजर, उससे थोड़ा कम डिटेल्स चाहिए तो हार्पर, फिर आपको छोटा छोटा चाहिए तो वही रामचंद्र, वासु, यही सब. ये बायोकेमिस्ट्री के लिए ये जरूरी है. मैं कॉलेज में खरीदा था जब मैं ग्रेजुएशन में था, क्योंकि इसमें काफी सारे टॉपिक कवर करता है. बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक कवर करता है, जेनेटिक्स का टॉपिक, माइक्रोबायोलॉजी, कुछ टॉपिक फिजियोलॉजी का भी होता है, और एक बुक में काफी सारी चीजें रेफरेंस मिल जाता है. रख देना, रख दे, इसको खराब हो जाएगा. नहीं नहीं, उसको रख दे. तो जूलॉजी में हम लोग कर रहे हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, थोड़ा डिटेल होना चाहिए. तो यहाँ पे हम एंथ्रोलॉजी, एंथ्रो जैसे नहीं कर सकते. वहां पे मैंने जैसे एडेनिन गुआनिन का स्ट्रक्चर देता नहीं, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऐसे नाम लिख देता हूँ. यहाँ पे आप ही लोगों के सब्जेक्ट कई चीजें हैं, तो यहाँ पे अगर हम सुपरफिशियली करेंगे दैट विल बी अनफेयर. ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस. जो शुगर जो है दैट इज ए पेंटोस शुगर, मीन्स 5 कार्बन शुगर. हेयर इट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, ऑक्सीजन. ठीक है, एट पोजिशन 2 1 ऑक्सीजन इज मिसिंग यहाँ पे, दैट इज इट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस शुगर. ठीक है, इन केस ऑफ आरएनए राइबोस शुगर इज इन्वॉल्व, तो वहां पे क्या होगा? यहाँ पे वही शुगर. यही अंतर है, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर. ठीक है, एंड नाइट्रोजनस बेस जो है there are mainly 2 types of nitrogenous bases, purine and pyrimidine. Purine includes adenine and guanine, whereas pyrimidine includes cytosine and thymine.
In purine there are two rings, two ring structure. Pyrimidine जो है single ring structure. Is a heteromeric ring, means in the same ring different types of molecules are formed, carbon, nitrogen, heteromeric. नहीं, डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होगा। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो व्हेन दे आर बाउंड विथ ईच अदर तब जाके बनता न्यूक्लियोसाइड। तो कैसे बनता है? ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। इट इज कॉल्ड एडिनोसिन। And this bond is called beta galactosidic bond. आप लोग अलग से बनाना नहीं तो दिक्कत नहीं। पहले हम लोग शुगर दिखाया, नाइट्रोजन बेस दिखाया, फिर न्यूक्लियोसाइड दिखाया। तो adenine binds with sugar, and this binding takes place between first position of sugar and ninth position of nitrogenous base. बीटा गैलेक्टोसाइडिक बॉन्ड, वो जो दोनों बाइंड कर रहे बॉन्ड के थ्रू ही होगा ना, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडिक बॉन्ड। अरे देख के ही बना लेना, टाइम लग जाएगा। अच्छा, आज क्लास होगा, इनको पता नहीं था ना? नितिन कल भी नहीं आता, वो रेगुलर आता है। इसमें लिखने का ज्यादा कुछ है नहीं, यही डायग्राम।